गुड आफ्टरनून। ग्रामर की बात माधव मोहन के साथ आज फिर बात होगी ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, प्रेजेंट परफेक्ट। तो लेट्स कम टू द पॉइंट एंड हैव अ ग्लांस ऑफ द व्हाइट बोर्ड and I am going to discuss today the present perfect tense. Present perfect tense. Right? Let us know what does it mean. What is the structure of this tense? And how can we identify the sentences of present perfect tense? Ladies and gentlemen, dear guys, मेरे respected viewers, present perfect का structure होता है subject सबसे पहले, subject plus have या has, right? Thereafter verb का तीसरा form, third form of the verb, उसके बाद object या complement. This is the structure of present perfect tense. Subject have has V3 plus O oblique C. It means object oblique complement. ठीक है? हिंदी में बात करते हैं ना, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं रहे, या है, ई है, ये है रहे, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत रखा गया है। Now let's have an example. कहते हैं I have accomplished my work. मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। Accomplished means होता है complete. Accomplish means to complete. तो accomplish का थर्ड फॉर्म मैंने यहां लिखा accomplished, पूरा किया है। I have completed my work. I have finished my work. आप लिख सकते हो, right? And ध्यान देंगे ये affirmative sentence है। कौन सा sentence है ये? This is an affirmative sentence. सकारात्मक वाक्य है। How can I change into negative form? We can change into negative form that I haven't, I have not accomplished my work. I haven't accomplished my work. मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। फिर बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंट्रो में आप क्या करोगे? हैव को आगे करते हैं, हैव आई, और रेस्ट सब कुछ वही रहेगा। हैव आई accomplished my work? accomplished my work, क्या मैंने अपना काम पूरा किया है? फिर इसी तरह से आप इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हो, हैव आई नॉट accomplished my work, राइट? बात करते हैं she has completed her homework. She has completed her homework. वह अपना काम, घर का काम पूरा कर चुकी है। They have won the match. वे लोग अपना मैच जीत चुके हैं। They have won the match. वे लोग मैच जीत चुके हैं, राइट? इस तरह बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, when we talk about its use, जब हम इसके यूज की बात करते हैं तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इसके यूज को सीखते हैं हम लोग। Let us learn its use. Uses. तो पहला यूज है, the first use of present perfect tense is to express actions completed recently. जो काम हाल ही में पूरा हुआ है, जो काम अभी अभी पूरा हुआ है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। He has seen the Taj recently. वह हाल ही में ताजमहल देखा है, ताजमहल का दौरा किया है।
ताजमहल का दीदार किया है। He has recently seen the ताजमहल। वह अभी अभी हाल ही में ताजमहल का दीदार किया है। Recently finished action है, right? We have won the match। हम लोग मैच जीत चुके हैं। Hello, what happened in the match? Well, we have won the match। हम लोग मैच जीत चुके हैं। Recently finished actions। What does it mean? These examples indicate that action has recently been finished। Action has taken place recently। तुरंत काम पूरा हुआ है। This is the first use of present perfect tense। Now let us discuss the second one। Dear viewers, the second use of present perfect is to express repeated actions। Repeated actions, जो काम बार बार हुआ। अब मैं कहूं I have written 7 letters since morning। मैं सुबह से 6 पत्र लिख चुका हूं। I have written 6 letters since morning। मैं सुबह से 6 चिट्ठियां लिख चुका हूं। They have had a bath twice since 4 p.m. 4 a.m. They have had a bath twice since 4 a.m. वह सुबह 4 बजे से 3 बार स्नान किया। Understand? Thrice means 3 times. Once 1 time. Twice 2 times. Understand or not? My father has written several books on Indian society। मेरे पिताजी भारतीय समाज पर कई किताबें लिख चुके हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरह के एग्जाम्पल्स रिपीटेड एक्शंस को बताता है जो काम बार बार हुआ हो, जिस काम की पुनरावृत्ति हुई हो, जिस काम का दोहराव हुआ हो, जो दोबारा हुआ हो, उसको बताने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करते हैं टू एक्सप्रेस एक्शंस। Completed in the past। Completed in the past। Completed in the past whose effect continues। Whose effect continues। Very important use dear friends। मेरे प्यारे दर्शकों, YouTube पर मेरी वीडियो देखने वाले तमाम बंधुओं को मैं कहना चाहूंगा यह यूज काफी इंपॉर्टेंट यूज है प्रेजेंट परफेक्ट का। जरा देखते हैं मैंने क्या लिखा है। टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो काम बीते हुए समय में पूरा हुआ हो। whose effect continue, और जिसका प्रभाव अभी भी जारी हो। ओह, what happened in your finger? आपकी उंगली में क्या हुआ है? ओह, I have cut my finger। I have cut my finger। Actually, I was sharpening a pencil with a shaving blade, and it suddenly slipped, and I have cut my finger। Right? तो देखिए एग्जाम्पल को मैं लिखता हूं। I have cut my finger। Cut my फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट ली है या मेरी उंगली कट गई है। अब उंगली कटी ना, ब्लीडिंग हो रही है, दर्द भी है, तो
उंगली काटना एक्शन कंप्लीटेड, इफेक्ट तो कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू है, उसमें दर्द भी है, ब्लीड भी आ रही है, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इफेक्ट कंटिन्यूस। अंडरस्टैंड? अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। He has had his lunch. He has had his lunch. अब जरा यहां थोड़ा सा आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, हैज और हैड। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ कंफ्यूजन, दिस इज अ मैटर ऑफ क्लियर कंसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। समझते हैं क्या है रूल यहां पर? हैव हैज के बाद ये हैड B3 का काम कर रहा है, और ये हैड जो है, हैव का मीनिंग होता है टेक, लेना, खाना का सेंस। उसी हैव का तीसरा फॉर्म है हैड, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। तो मैंने हैव का तीसरा फॉर्म हैड लिखा है, जो ईटन का सेंस देता है, टेकन का सेंस देता है। तो ही हैज हैड हिज लंच, वह अपना दोपहर का खाना खा चुका है, ले चुका है। तो खाना खाया तो वो संतुष्ट है ना, उसे भूख नहीं लगी है अभी तक, उसका इफेक्ट कंटिन्यूस है ना। इसी चीज को समझ रहे हैं? He has had his lunch. Understand? Very nice. पढ़ते हैं आगे। Let us talk. Let us proceed. The rules, and now we shall talk about rule number 4. Rule number 4 is very important for the competitive students. जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज, SSC, बैंकिंग एटसेट्रा, उसके लिए रूल काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना। क्या रूल है भाई? एडवर्ब ऑफ टाइम, कुछ ऐसे क्रिया विशेषण है जो आपको समय को बताता है। अब वो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हो सकता है? जैसे आप कहते हो लेटली, रिसेंटली, अप टू द प्रेजेंट, ऑलरेडी, राइट, जस्ट, फॉर, सिंस, एटसेट्रा, येट, सो फार, अप टू द मोमेंट, ऐसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। मान लो जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम सच एज, ठीक है। सबसे पहला एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूज करते हैं ऑलरेडी, पहले ही, जस्ट, जस्ट, अभी अभी, फॉर सिंस, फॉर सिंस। जैसे बात करते हैं अप टू नाउ, अभी तक, येट का प्रयोग करते हैं, येट, समझ रहे हैं? लेटली और रिसेंटली का प्रयोग करते हैं, लेटली, रिसेंटली। प्रेजेंट परफेक्ट में ये जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम को आप यूज करते हैं। जैसे क्या है? ऑलरेडी, फॉर, सिंस, येट, सो फार, अप टू नाउ, जस्ट, फॉर, सिंस, up to the moment, up to the present moment, lately, recently, इस तरह के एडवर्ब्स ऑफ टाइम को आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हो। तो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा कि whenever you solve the common questions, you see these types of adverbs of time, you just think the sentences are of present perfect tense, तो आप verb के सही फॉर्म को इजीली आप चूज कर सकते हो। अंडरस्टैंड और नॉट? तो इस तरह जो है प्रेजेंट परफेक्ट का यूज है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल यह है कि टू एक्सप्रेस एक्शंस, टू एक्सप्रेस एक्शंस started in the past, started in the past and still continues, still continues। ध्यान दीजिएगा, जो काम बीते हुए समय में शुरू हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा हो, ऐसी वाक्यों को भी आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हो। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। मैं कहता हूं आई हैव लिव्ड इन पटना, lived in Patna since 2000। मैं 2000 ईस्वी से पटना में रह रहा हूं।
इसी सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज कर सकते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस द ईयर 2000। मीनिंग विल बी सेम, बोथ द सेंटेंसेस विल हैव सेम मीनिंग। कंफ्यूज नहीं होना है, राइट? He has known to me, he has known to me since childhood. क्लियर है मीनिंग? वो मुझे कब से जानता है? बचपन से जानता है। तो जानने का काम पास्ट में हुआ और अभी भी प्रभाव जारी है, स्टिल कंटिन्यूज। अंडरस्टैंड और नॉट? तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट परफेक्ट में आप यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के वेरियस यूजेस पे बात किया, राइट? अगेन आई शैल मीट यू टुमारो at the same time with a new topic, the uses of present perfect. Thank you for watching and listening to me. If you like this video, please like it, subscribe and share with your family members, kids and kids, relatives and friends. Share करना ना भूले. That's all. Bye bye. Take care.